Good morning everyone. Today we will discuss diffraction of light. So, what is this diffraction of light? This is the phenomena of bending of light around the corners of an obstacle placed in its path. So, bending of light around the corners of the obstacle placed in its path. So, basically if we say that the light incident wave is in this form and it is passing through this slit. So, what will happen when it will pass? So, slightly it will be getting curved and passing through it. Further, if this slit separation distance is reduced, so further there is bending, यानी there is यहाँ इस तरीके से क्या हो रहा है, bending होनी शुरू हो जाएगी, curving होनी शुरू हो जाएगी. So this is basically bending of light around the corners of an obstacle placed in its path. This is called diffraction of the light. Now, condition for diffraction of light, that when size of obstacle, so this size of obstacle, it is of order of wavelength of light. So size of obstacle is of the order of wavelength of light which we are using. This is the essential condition for diffraction of light to occur, and it is of two types. Basically we will study here two just general discussion about these two. One is Fresnel diffraction and another is Fraunhofer diffraction. So what is Fresnel diffraction? It is a diffraction in which source and screen, these are at finite distance. Distance between source and screen is finite from the obstacle, and the incident and diffracted waves have spherical wavefront. So इस केस में हम कोई भी लेंस नहीं यूज करते हैं. Source and screen, these are at finite distance, main point. जबकि Fraunhofer diffraction क्या होता है? It is a diffraction in which source and screen, that these are placed at very large distance, infinite large distance from the obstacle. Here usually we will discuss in detail this Fraunhofer diffraction. So here let me discuss this Fraunhofer diffraction in detail. So now this Fraunhofer diffraction, for it let me consider monochromatic source of light. This is emitting light waves of wavelength lambda. It is placed, where it is placed, we are taking one lens, let it be lens L1. This is convex lens we are taking. So this source of white light, it is placed at the focus point of this lens. So if this is the source we are taking. Now a parallel beam of light, that is यानी यहाँ से जब ये ray of light यहाँ से जब इस पर strike करती हैं, तो basically after passing through this lens, a parallel beam of light is incident on, where it will incident? It is incident on the slit. Let we take one slit having width A. This is a slit having width A we will take, right? So हम ये कहें कि parallel rays are incident on this slit, or you can say this plane wavefront. मान लो इस wavefront को मैं नाम दे दूँ WW1. So this is incident on the narrow slit of width small a. इसका हम label करते हैं slit का AB, capital ABC. So now here from this the ray will produce a diffraction pattern on the screen. Screen we are taking to be placed at a large distance. Let it be distance capital D from the slit arrangement. So this diffraction pattern will be obtained on a screen and it is at a distance capital D from the slit. Now अब इनके बीच में हम क्या करते हैं कि अगर रेज यहाँ से पास होके इस किसी भी पॉइंट पर मिलती हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पर एक दूसरा लेंस यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस. अनदर कॉन्वेक्स लेंस वी विल यूज़. अब हम कह सकते हैं कि ये रेज इस लेंस से पास करके जिस पॉइंट पर मीट करेंगे उस पॉइंट पर हमें पैटर्न ऑब्टेन होगा. सो हियर व्हाट विल बी द फिगर इन दिस केस? वी विल प्रोड्यूस दिस रे, ऑल द रेज. We have shown here only 3 rays. These are incident on the lens.
and at this point this is the position where these waves will combine. They will produce a pattern on the screen that this point is O. So according to Huygens principle, when light fall on the slit, it becomes source of secondary wavelets. देखिए थोड़ा सा हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए इसको. When a light falls on the slit, it becomes a source of secondary wavelets, and at a point O, all the waves reach traveling equal path length. यानी यहाँ से जितनी भी रेज मेट कर रही हैं यहाँ से equal path length travel करके आ रही है, and that all are in the same phase. That are in the phase. So waves interfere constructively. इस पॉइंट पर जब वेव्स मिल रही हैं, they are interfering constructively with each other, and hence maximum intensity is obtained at the central point O. यानी हमने क्या कहा कि सबसे पहले हमने एक सोर्स लिया है जिसको हम प्लेस कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस L1 के फोकस पॉइंट पर. अब यहाँ से जब रेज आ रही हैं, these are rendered parallel with the help of this lens, and these rays are incident. These are made to pass through a slit जिसकी विड्थ है A. यानी हम ये कह सकते हैं कि एक वेव फ्रंट इंसिडेंट कर रहा है. सो करस्पॉन्डिंगली फर्दर हमें डायफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्टेन करना है स्क्रीन पर. उसके लिए हम एक स्क्रीन यूज करते हैं डिस्टेंस d फ्रॉम दिस स्लिट. अब एक दूसरा लेंस क्यों लेना पड़ता है? ताकि रेज यहाँ फोकस हो जाए, सो दैट द रेज ट्रेवलिंग इक्वल पाथ लेंथ एंड रीच एट पॉइंट O, दे विल इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली. तो सेंट्रल मैक्सिमा की पोजिशन बनती है यहाँ पर. नाउ व्हाट कैन बी द पोजिशन ऑफ अनदर मैक्सिमाज एंड मिनिमा. अब अगर सेंटर पे मैक्सिमा है जैसे हमने इंटरफेरेंस पे किया था, सो वी रिक्वायर अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन ऑन एनी ऑफ द साइड वेयर नेक्स्ट सेकेंडरी मिनिमा विल बी देयर नेक्स्ट आफ्टर दैट सेकेंडरी मैक्सिमा कैन बी देयर. तो उसके बाद जो नेक्स्ट मैक्सिमा या मिनिमा की पोजीशन को जज करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट वी टेक अ पॉइंट P ऑन द स्क्रीन डिस्टेंट y फ्रॉम द O पॉइंट. सो हियर अब हम यहाँ पर इसको कहते हैं कि ये तो रेज दीज आर ट्रैवलिंग, यानी ये जो रेज यहाँ से इस पॉइंट पर जा रही हैं, जस्ट इस तरीके से दिखाना है कि ये इस पॉइंट P पर इंटरफेयर कर रही हैं इससे पास होती हुई इस लेंस से, एंड यहाँ पर इंटरफेयर करती हैं. अब इसके कोरस्पॉन्डिंग दिस कैन बी द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा. लेट दिस एंगल, यानी जितना एंगल यहाँ पर ये डेविएट हुआ है, जिस एंगल से ये बेंड होके गई है, दैट इज एंगल थीटा. दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा. तो अब इसमें देखिए वेवलेट्स रीचिंग एट पॉइंट P, दे मे कवर अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल पाथ लेंथ. तो ज़रूरी नहीं है जो ये वेवलेट्स यहाँ इंटरफेयर कर रही हैं ये सभी फेज में हों. देयरफॉर नाउ वी विल कैलकुलेट पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स. अब इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट वी टेक, सो नाउ टू गेट द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा, अब हम क्या करते हैं, एज वी आर टेकिंग दैट द रे गेट डेविएटेड थ्रू एन एंगल थीटा. तो इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इट इज लाइक दिस. सो एंगल बिटवीन टू लाइन इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर. इसके परपेंडिकुलर ये हो गई और इसके परपेंडिकुलर ये, यानी ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया. सो नाउ हेयर let we represent this point as N. So to get the position of secondary minima and maxima, we will consider triangle ABN. अब इस ट्राइंगल में this BN is taken as the path difference between the waves interfering at point P. तो path difference कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज करेंगे क्योंकि ये हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गई. तो अब इसमें इन ट्राइंगल ABN लेट वी अप्लाई फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा. साइन थीटा दिस इज BN अपॉन AB. दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज. सो BN की वैल्यू हमें निकालनी है. BN इज AB साइन थीटा, और AB की वैल्यू हमने कितनी ली है, विड्थ ऑफ स्लिट कितनी ली हुई है, A. सो इट इज A साइन थीटा. सो पाथ डिफरेंस ऑफ इंटरफेयरिंग वेव्स कम्स आउट टू बी A साइन थीटा. नाउ if we consider that the path difference between the waves is lambda, हमने कंडीशन लिया कि मान लो ये लैम्डा के इक्वल है, तो इसका मतलब A साइन थीटा विल बी लैम्डा. तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन A. सो दिस पॉइंट, यानी अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो दिस विल बी द पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा.
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये कहें कि जो हमारे पास स्लिट है जिसकी विड्थ a है, यानी इसको हम एज्यूम करते हैं, लेट इट इज एज्यूम टू बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब वेवलेट्स फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, यानी दोनों हाफ्स ऑफ द स्लिट्स में से द वेव्स विच आर कमिंग आउट विल हैव अ पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2, यानी टोटल पाथ डिफरेंस है लैम्डा, तो इसका मतलब यहाँ से भी लैम्डा बाय 2, यहाँ से जो वेवलेट्स आ रही हैं इनका भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2। सो वेवलेट्स फ्रॉम दीज टू हाफ्स विल रीच एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन पर जो हमने पॉइंट लिया हुआ है, एंड इस तरीके से इंटरफेयर करते हैं, दे विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जब ये मूव करते हैं तो बेसिकली द इंटेंसिटी विल बी रिड्यूस्ड, राइट। सो इन दैट केस दिस विल बी द कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमम। आई एम रिपीटिंग कि जब हम एज्यूम करते हैं कि पाथ डिफरेंस लैम्डा हो तो उसमें हम पूरी स्लिट को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, जिसमें दोनों पार्ट का पाथ डिफरेंस हम लैम्डा बाय 2 ईच लेते हैं। तो यहाँ से जो वेव्स आ रही हैं सेकेंडरी वेवलेट्स आ रहे हैं, और इस पार्ट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स आ रहे हैं वो इस तरीके से इंटरफेयर करते हैं, दैट मीन्स दे आर इंटरफेयरिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट फेज, सो दैट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑब्टेन्ड एट पॉइंट P विल बी मिनिमम। Similarly, if the path difference, if we assume it to be 2 lambda, तो उस केस में साइन थीटा क्या होगा 2 लैम्डा बाय a। तो अगर हम इसी तरीके से nth मिनिमा की बात करें, यानी ये सेकेंडरी मिनिमा है, अब हम nth मिनिमा की बात करें तो nth मिनिमा में साइन थीटा क्या हो जाएगा n लैम्डा बाय a, यानी 2 है सेकेंड के लिए, nth के लिए n है। सो यानी कि मिनिमा के लिए हमारे पास जो कंडीशन आ रही है जनरल कंडीशन में, देन इट कम्स आउट टू बी दिस वन। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, और यू कैन से दैट a साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। क्यों कहेंगे? क्योंकि जितना भी हम पार्ट ले रहे हैं ये n डिसाइड कर रहा है कि हमारा जो पूरा विड्थ है स्लिट का वो इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में, यानी 2 में हो रहा है, 4 में हो रहा है, 6 में हो रहा है, यानी जितना भी हो रहा है, यानी n की वैल्यू हमने 1 लिया तो हाफ हाफ डिवाइड हो गया, 2 लिया तो यानी ये पूरी विड्थ 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हर पार्ट का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है। अगर इससे ज़्यादा होगा, यानी अगर 3 लैम्डा हो गया तो 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और इन सबसे जो वेवलेट्स आ रही हैं दे विल इंटरफेयर, दे विल मिक्स टू गिव minima, so that all will be the position of secondary minima. Now coming for the maxima, अब हमें मैक्सिमा की जब कंडीशन ऑब्टेन करनी है तो हम पॉइंट P ऐसे लेते हैं ताकि पाथ डिफरेंस कैसा हो 3 लैम्डा बाय 2, यानी लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा तो मिनिमा का कंडीशन हो गया। तो अब लैम्डा 2 लैम्डा के बीच में कहीं आपके पास कोई पोजीशन होगी जो आपको मैक्सिमा की पोजीशन देगी, तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं 3 बाय 2 लैम्डा बाय 2। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ, यानी यहाँ से a साइन थीटा जब हम ले रहे हैं, सो साइन थीटा विल बी 3 बाय 2 लैम्डा बाय 2। सो इट विल बी द पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो अब इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि मान लो वही स्लिट हमने ले रहे हैं, अब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। So what will happen? Wavelets from first 2 parts will reach point P on the screen in opposite direction. So इसका मतलब जो 2 parts से जो wavelets स्क्रीन तक पहुंच रहे हैं वो एक दूसरे की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर रहे हैं। सो मैक्सिमम के लिए कौन सा पार्ट बचा? ये थर्ड पार्ट, यानी थर्ड पार्ट में जो वेव्स है उसका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है। सो वेवलेट फ्रॉम दिस थर्ड पार्ट ऑफ द स्लिट, दिस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द मैक्सिमा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर रहे हैं, नलीफाई करेंगे, और इसकी वजह से जो वेवलेट्स पी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, स्क्रीन पर पहुंच रहे हैं, वो हमें पोजीशन देगा मैक्सिमा। यानी आप पिछले केस से कंपेयर करो तो पिछले केस में हर इंडिविजुअल पार्ट का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 था, यहाँ भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। लेकिन जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं उस केस का मिक्सिंग इस तरीके से होती है कि उनकी इंटेंसिटी, उनका इफेक्ट एक दूसरे को नलीफाई कर देता है, लेकिन थर्ड पार्ट जिसके साथ कोई पेयरिंग नहीं है वो हमें मैक्सिमा देता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर पाथ डिफरेंस को हम ले लें ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, लाइक हम इसको ले लें 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, तो हम क्या कंक्लूड करते हैं? तो मैक्सिमा के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है? 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 और 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। अब अगर यहाँ पर आप n की वैल्यू 1 से शुरू करते हैं तो उस केस में 2n माइनस 1 यूज करेंगे। अगर आप n की वैल्यू 0 से शुरू करते हैं तो ये कंडीशन 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 दे सकते हैं।
सो बेसिकली इन दिस एक्सप्लेनेशन पार्ट व्हाट यू आर जजिंग कि जितने भी पार्ट्स में जब ये डिवाइड हो रहा है, दिस इज 2a, ये है ना, क्योंकि और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ चल रहे हैं हमारे पास। सो कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास मैक्सिमा की कंडीशन में आपको λ/2 के और मल्टीपल्स चल रहे हैं, यानी 3, 5, 7, जबकि मिनिमा की कंडीशन में आपके पास λ, 2λ, 3λ, यानी कि जितने भी पार्ट्स हैं उसमें पूरा जो विड्थ ऑफ स्लिट है वो इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और मैक्सिमा में ऑड नंबर ऑफ पार्ट्स में, यानी जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। सो नाउ इफ वी प्लॉट इंटेंसिटी विद द फेज एंगल, so here what we are observing that here intensity of bright central part will be maximum, and after that this intensity goes on reducing on both the side of secondary central maxima. रीज़न यहाँ पर इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि ये तो सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन होगी इसके करस्पॉन्डिंग ओ पॉइंट पर। अब उसके बाद जब हम एंगल लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर जैसे जैसे हम दोनों साइड पर आ रहे हैं तो मिनिमम इंटेंसिटी की में दोनों वेव स्लिट्स जो दोनों स्लिट के दोनों पार्ट से इंटरफेयर कर रहे हैं वो डिस्ट्रक्टिवली कर रहे हैं, जिससे इंटेंसिटी रिड्यूस हो गई। लेकिन जहाँ सेकेंडरी मैक्सिमा बन रहा है वहाँ इंटेंसिटी सेम नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती? क्योंकि वहाँ पर जो एक्सपोज्ड पोर्शन है उसमें 3 पार्ट्स में से ओनली 1/3 पार्ट में से इंटेंसिटी पास करती है। अगर यहाँ पर ये 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा तो 1/5 पार्ट में से इंटेंसिटी पास करती है। यानी जैसे जैसे जितना है इसका डिवीजन बढ़ाते जाएंगे उतनी ही इंटेंसिटी will be getting reduced. So here when you're plotting this graph the pattern will be like this. So you must know how to plot this graph. So if I want to mention it, this there can be the angle on both the sides. अब इसके बाद अगर हम निकालें यहाँ से कि इनकी फ्रिंज विड्थ कितनी होगी सेकेंडरी मैक्सिमा की और मिनिमा की, सो अगेन वी विल यूज द फिगर दैट आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन। देखिए इन दिस फिगर इन ट्राइंगल CPO वी आर एज्यूमिंग दिस एंगल टू बी टेकन टू बी वेरी स्मॉल। अब इस ट्राइंगल में सबसे पहले हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या होगा OP/CO, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहाँ से हम टेंजेंट थीटा और थीटा की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि एंगल दिस एंगल ऑफ डेविएशन इज टेकन टू बी वेरी वेरी स्मॉल। सो इन ट्राइंगल COP टेंजेंट थीटा हो जाएगा OP/CO। अब OP डिस्टेंस क्या था y एंड CO इज द स्क्रीन डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं इक्वल टू थीटा। अब बेसिकली अगर हम ये देखें कि हमें देखना है कि सेंट्रल मैक्सिमा यानी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, तो अगर हम कंडीशन ले लें फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन, तो वहाँ हमारे पास साइन थीटा का एक्सप्रेशन था, दिस इज n λ/a। अब n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू λ/a, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, एंगल टेकन टू बी वेरी स्मॉल। अब एक एक्सप्रेशन ये हो गया और एक एक्सप्रेशन ये, तो इन दोनों को जब हम इक्वेट करते हैं तो y/d इक्वल टू λ/a, तो y क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास λd/a। अब अगर हम यहाँ पर nth कंडीशन लेके चल रहे हैं यानी मिनिमा की कोई भी पॉइंट के लिए लेंगे तो लेट वी टेक इट n, तो यहाँ पर बेसिकली ये आ जाएगा दैट दिस इज गिविंग यू द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, यानी किस किस पॉइंट पर सेकेंडरी मिनिमा यहाँ ऑब्टेन हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पर n की वैल्यूज पुट कर दें, n की वैल्यू दिस इज व्हेन वी आर सब्सटीट्यूटिंग, मान लो nth वैल्यू ले, n की वैल्यू 1 ले, 2 ले, 3 ले, या अगर ये कहें कि कोई भी सक्सेसिव मिनिमा की पोजीशंस ले, तो विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा जब हमें निकालनी हो तो वो विड्थ कैसे आएगी, मान लो अगर मैं ले लूँ nth और n-1, तो हम यहाँ पर इसको ले लें, दिस इज़ योर yn एंड yn-1, मान लो इसको हम फ्रिंज विड्थ ले लेते हैं, तो nth का हो गया n λd/a, n-1 का हो जाएगा तो इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा λd/a स्मॉल। So this is the expression for width of secondary maxima. So basically don't get confused, ये सिंबल जो हमने सफिक्स यूज़ किया है हम सिंपली इंडिकेट कर रहे हैं दिस इज द पोजीशन ऑफ nth मिनिमा एंड n-1th मिनिमा। तो इन दोनों की पोजीशन का जो डिफरेंस होगा वो क्या देगा हमें, विड्थ ऑफ सेकेंडरी
maxima. So in this way we have obtained the width of secondary maxima. Similarly we will obtain the width of secondary minima. So for getting width of secondary minima, तो हमने टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाली थी y upon d, right? So now if we compare it with the condition of secondary maxima, और secondary maxima की condition हमारे पास क्या है, that theta, this sin theta equal to this is 2n minus 1 lambda by 2a, this is approximately equal to theta. अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम इक्वेट करते हैं तो यहाँ से आ जाता है वैल्यू ऑफ दिस y, इट इज़ 2n minus 1 lambda by 2a, दिस इज d, इधर आ जाएगा न्यूमरेटर में. सो दिस इज द पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी जहाँ हमें मैक्सिमा मिलता है. अब दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस क्या देगा, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमा. तो उसको भी अगर हम लें, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वाई एन डैश माइनस वाई एन डैश एन माइनस वन डैश. आप चाहें तो एन की वैल्यूज़ लेके कर सकते हैं, एन की वैल्यू 1 2 3 लेके कर सकते हैं, और सक्सेसिव आप दोनों का डिफरेंस लेके करेंगे. तो अगर एन डैश ले रहे हैं तो 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2a माइनस एन माइनस 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 माइनस 1 बाई 2a इंटू लैम्डा डी. अब इसको व्हेन वी आर सॉल्विंग तो लैम्डा डी बाई 2a कॉमन, दिस इज 2n माइनस 1 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस दिस इज 2, दिस इज माइनस 1. सो हेयर इट विल come out minus minus plus, so it will be 2 lambda d by 2a. So directly you can see this width will come out to be same. So what does it mean, that all secondary maxima and minima are of same width, yani fringe width will be same. Now if we have to calculate width of central maxima, अब सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ आपको निकालनी है. तो देखिए सबसे पहले, यानी अगर हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा ये है तो यानी इन दोनों पोजीशंस के बीच का डिफरेंस आपको ये निकालना है. अगर ये डिस्टेंस हमने y लिया, हमने कैसे दिखाया था कि स्क्रीन पर ये O पॉइंट और यहाँ पर आएगा मिनिमा, तो ये डिस्टेंस y था. तो सेकेंडरी ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या हो जाएगी, दिस शुड बी 2y. चाहे आप इंटेंसिटी पैटर्न के हिसाब से देखिए, चाहे आप इसको स्क्रीन के हिसाब से देखिए, यानी आपको टोटल 2y डिस्टेंस निकालना है. तो सबसे पहले अगर हम लें कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा, दिस इज a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा. अब अगर फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन चाहिए तो n की वैल्यू 1 लिया तो a sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, तो sin थीटा हो जाएगा लैम्डा बाय a. ठीक है. अब अगर हम ये कहते हैं कि जैसे हमने सेकेंड लेंस जो हमने यूज़ किया है, नाउ एज फॉर दिस लेट वी सी द डायग्राम. So as per this figure, now if we consider, मान लो f is the focal length of this lens L2, as the focusing is done on the screen which is placed here, so basically parallel rays meet at the focus point. तो हम अगर ये assume करें कि ये लेंस बिल्कुल इस स्लिट के क्लोज प्लेस्ड है, तो इसका corresponding हम कह सकते हैं कि यानी कि जो इसकी फोकल लेंथ होगी that will be approximately equal to distance of screen from the slit. ये हम कब लेके चल रहे हैं, जब हम ये assume करें कि ये लेंस, this lens is placed very close to slit, so that focal length is equal to distance of screen from the slit. तो अब इसके लिए अब हम यहाँ पर लेंगे इन ट्राइंगल CPO, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, दिस विल बी योर एंगल की वैल्यू निकालेंगे जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग टेंजेंट थीटा जब हम निकालते हैं इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन दिस स्पेस. तो परपेंडिकुलर हो गया y, और ये डिस्टेंस जो कि d था जिसको हम f के इक्वल ले सकते हैं. तो लेट वी राइट द एक्सप्रेशन. So that as per the triangle, tangent theta will be perpendicular upon base. This is equal to y upon this focal length, and this angle is taken to be small. So from this first and second, this y upon a equal to this lambda upon a equal to y upon f. तो y distance, that is position of central maxima with respect to first minima, यानी p point का distance आ जाएगा f lambda upon a, या हम ये कह सकते हैं लैम्डा डी अपॉन ए. दोनों तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको. ये तो एक अप्रॉक्सीमेशन है जब हम एज्यूम कर लेते हैं कि डी इक्वल टू है, अदरवाइज स्टैंडर्ड रिजल्ट इस फॉर्म में रहेगा. तो अब अगर हम ये कहें कि विड्थ ऑफ सेकेंडरी सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा 2y, तो हम लिख सकते हैं 2 लैम्डा डी अपॉन ए.
अगर हम 2 लैम्डा एफ अपॉन ए लिखते हैं, दैट इज ओनली द अप्रॉक्सीमेशन की लेंस इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू स्लिट, अदरवाइज जनरल फॉर्मूला विल बी दिस वन. सो नाउ दिस इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. अगर हम कहें एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, सो एंगुलर विड्थ के लिए आप इस एक्सप्रेशन को कैपिटल डी से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 2 लैम्डा बाय ए. सो एंगुलर विड्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्क्रीन डिस्टेंस, वेदर इट इज अ केस ऑफ इंटरफेरेंस और इट इज अ केस ऑफ डायफ्रैक्शन. So now from this expression what we conclude that the width of secondary maxima and minima, here you can see fringe width is equal, so width of secondary maxima and minima is directly proportional to wavelength, whereas inverse this is also inversely proportional to width of the you can say this width of the slit. So that is giving you the position of maxima and minima, yani position nahi, this is giving you the width of second slit. This is giving you the width of fringes which we are taking basically. Now अब इसी एक्सपेरिमेंट में अगर हम ये कहते हैं कि when source of light is monochromatic, तो उस केस में क्या होगा, central bright fringe has maximum intensity और secondary maximas की intensity rapidly fall करेगी. अब अगर हम ये कहें कि within the same experiment source of white light is there, then diffraction pattern will be colored, whereas central maxima will be white and band जो side में obtain होंगे maxima के, that will be all colored. So that's all about this diffraction pattern. One more point we can take, that the intensity of central maxima is independent of slit width. So here what we conclude, अगर हम इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्टेन करते हैं, डिफरेंस देखते हैं, तो इंटरफेरेंस में सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम रहती है, लेकिन डायफ्रैक्शन पैटर्न में सेंट्रल मैक्सिमास के अलावा सेकेंडरी मैक्सिमास की इंटेंसिटी वेरी कर रही है. इंटरफेरेंस में क्या होता है, सबकी इंटेंसिटी चाहे किसी भी पोजीशन पे मैक्सिमा ऑब्टेन होता है, सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा हर पॉइंट पे इंटेंसिटी सेम है, लेकिन डायफ्रैक्शन में ये इंटेंसिटी रिड्यूस होती चली जाती है. रीजन आई हैव एक्सप्लेन टू यू. So if we compare interference and diffraction pattern, what can be the difference? First is the definition, that interference is due to superposition of two distinct waves coming from two coherent sources, जबकि diffraction क्या है, this is due to the you can say bending of light around the corners of the obstacle. Here in interference pattern, all bright fringes are of same intensity, whereas in diffraction, brightness of secondary maximas, these are going on decreasing, so these are not of same intensity. In interference pattern, intensity of minima is 0. ये very important point है कि intensity of minima 0 का मतलब there is a complete darkness at the minima, but here in the diffraction pattern intensity of minima will not be 0. It will having some pattern देखने से आइडिया लग जाता है कि वहाँ intensity minimum हो गई है, लेकिन exactly बिल्कुल dark नहीं होता है. So there is a poor contrast between dark and bright pattern in interference, and there is a good contrast between dark and bright pattern in interference. Next, width of interference fringes may or may not be equal, but width of diffraction pattern is always unequal. Now, and in diffraction pattern, width of central maxima, that I have explained by the formula, that width of central maxima is double the width of secondary maxima, but this is not in the case of this your interference. So that's the different questions that you can answer on the basis of pattern we have discussed. So diffraction due to single slit experiment या कहीं Fraunhofer diffraction, one and the same thing. यहाँ हमें मेन पॉइंट ध्यान रखना है, मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में रिवर्स हो जाती है. एन लैम्डा इज अ कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यदि मैक्सिमा की कंडीशन है इंटरफेरेंस में, ये कंडीशन डायफ्रैक्शन में मिनिमा की हो जाती है. तो आप ध्यान रखना कि एन लैम्डा इंटरफेरेंस में मैक्सिमा है और डायफ्रैक्शन में मिनिमा हो जाती है. जबकि पाथ डिफरेंस अगर इंटरफेरेंस में 2n-1 लैम्डा बाई 2 है, तो यहाँ ये मिनिमा की कंडीशन है इंटरफेरेंस में, और डायफ्रैक्शन में ये मैक्सिमा की कंडीशन हो जाती है. तो बेटा न्यूमेरिकल्स करते हुए इनमें प्रॉब्लम नहीं आती, बस ये कंडीशंस ध्यान रखना है, दैट यू मस्ट नोट इट लाइक दिस इन योर नोटबुक, ताकि मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन का रिलेशन आपको ध्यान रहे. Now after this, one very short point I am discussing, Fresnel distance. Fresnel distance.
इसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए, फ्रॉम द थियरी ऑफ डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट, एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन दैट इज बेंडिंग फॉर सेंट्रल मैक्सिमा वो हमारा अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है, दैट इज एज वी नो दैट ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। तो अगर हम कहें यहाँ से ए साइन थीटा, अगर एन की वैल्यू 1 लें तो साइन थीटा कितना हो गया, लैम्डा बाय ए। सो नाउ as per diffraction pattern, this angle is taken to be very small, that is lambda by a. Now in traveling distance z, half angular width of the beam will be this z lambda upon a, यानी कि हाफ एंगुलर विड्थ माने एंगुलर विड्थ एक्चुअली डायफ्रैक्शन में तो 2 थीटा है, तभी इसको हम हाफ एंगुलर विड्थ बोलते हैं। तो अगर हमारा इनिशियली हम कहते हैं कि एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन इतना है, तो अगर z डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो एंगुलर विड्थ कितनी हो जाएगी, तो थीटा कितना हो जाएगा, z लैम्डा थीटा। नाउ हियर दिस बीम विड्थ विल बिकम मोर देन विड्थ ऑफ द स्लिट, यानी हम ये कहेंगे दिस इज द बेसिक कंडीशन, ये कंडीशन का पॉसिबल है। सो करस्पॉन्डिंगली व्हेन z इज ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा, सो बेसिकली दिस इज योर फ्रेस्नेल डिस्टेंस। इसको एज ए टर्म की तरह आप समझ सकते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि बेसिकली फ्रेस्नेल डिस्टेंस इट इज द मिनिमम डिस्टेंस अ बीम ऑफ लाइट कैन ट्रेवल बिफोर इट्स deviation from straight line path become significant. So minimum distance a beam of light can travel before its deviation from the straight line path becomes significant, यानी कि एक ray of light straight line path से जब deviate होती है, so basically what is the minimum distance a beam of light can travel before its deviation, यानी deviation से पहले जितना minimum distance वो travel कर सकती है from the straight line from the, जैसे हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन पाथ से एक रे का पाथ बेंड हो रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स। तो बेंड होने से पहले किसी भी डायरेक्शन में जब बेंड हो रही है तो मिनिमम डिस्टेंस जो वो ट्रैवल कर रही है दैट इज बेसिकली एक्सप्रेस्ड एज द फ्रेस्नेल डिस्टेंस। नाउ न्यूमेरिकल वी आर टेकिंग व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न विद इन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न वेयर द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स that is given to be 1 millimeter. So what you have to do, you will compare angular width of diffraction pattern with 10 times the angular width of double slit experiment. So this will be the condition by which you can easily calculate width of each slit. So now angular width of diffraction pattern will be 2 lambda by a and angular width of 10 maxima of interference pattern that is double slit experiment की angular width होती है lambda by d and 10 times 10 maxima का combination है. So these two widths are combining. Why? Because this has been given in the statement that 10 maxima of double slit interference pattern lie within central maxima of diffraction pattern. So here just you have to solve it. Here a will be equal to, this is d by 5 and d, that is separation between the slits is given to be 1 millimeter, so it will be 0.2 millimeter, right? So this is one numerical, that is NCERT solved numerical. Now next numerical, a slit of width d is illuminated by white light. For what value of d is the first minimum for red light of wavelength 650 nanometer located at a point P at 30 degree. यानी आपको पहले D की वैल्यू निकालनी है किस कंडीशन पे, फर्स्ट मिनिमम कंडीशन पे. नाउ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट विल द फर्स्ट डायफ्रैक्शन मैक्सिमा आल्सो फॉल एट P. So if P is a position where we obtain the condition of minima and maxima, तो उसके corresponding अब आपको बताना है कि अगर सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा भी पी पॉइंट पे पड़ता है तो कोरस्पॉन्डिंगली वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, और अगर पी पॉइंट पे 30 डिग्री के एंगल पर फर्स्ट मिनिमा पड़ता है तो व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ द स्लिट. सो लेट वी टेक वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 650 नैनोमीटर एज फॉर फर्स्ट minimum condition is d sin theta equal to n lambda. So d
that is width of the slit, will be given by n lambda by sine theta, where first minimize there, n is 1, theta is 30 degree, and wavelength is given to be 650 nanometer. I will keep it in the nanometer. Sine 30, so 650 upon 1 by 2 means 1300 nanometer. So this is the width of slit. And for first maxima condition will be obtained when d sin theta equal to 2n plus 1 lambda by 2. लैम्डा डैश कह लो क्योंकि यहाँ पे हम वेवलेंथ इससे डिफरेंट कर रहे हैं, सिंबॉलिक है. सो फर्स्ट मैक्सिमा n इक्वल टू 1, सो इट विल बी 3 लैम्डा डैश बाय 2. सो लैम्डा डैश की वैल्यू निकालनी है. इट विल बी 2d साइन थीटा अपॉन 3. नाउ d की हमने वैल्यू निकाल ली है 1300 nanometer divided by 3 into sine 30 is 1 by 2. So on solving, this will be come out to be 433.3 nanometer. So this way you have done the numerical. Now practice more numericals, as for numericals are basically formula based. Just understand the statement carefully. So give more practice to numericals. Thank you. Have a nice day.